Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is quiz session 1 and this is for UGC NET aspirants. So if you are preparing for UGC NET exam, you can follow me here, you can subscribe my channel and hit the bell icon for the more updates. So in this session, I am going to discuss 10 MCQ series in labor welfare, that is code 55, and for unit 1, that is School of Management. And after the quiz is over, you have to just tell me or inform me your score in comment section, right? So let's start with the topic. The first question is, which term describe the process of obtaining, deploying and utilizing a variety of essential resources to contribute to an organization's success? So the first option is planning, second one is organizing, third one is staffing, and the fourth one is management. So you have to just tell me your answer and after that I will tell you a correct answer, right? So फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सा बेस्ट टर्म है जो डिस्क्राइब करता है जहाँ पर ऑब्टेन होता है, यूटिलाइजिंग हम करते हैं रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए. सो द आंसर इज मैनेजमेंट, राइट. मैनेजमेंट में क्या होता है, हम ऑब्टेन भी करते हैं रिसोर्सेज को, डिप्लॉय भी करते हैं, डिप्लॉइंग भी होता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का, है ना, और यहाँ पर प्रमोशंस भी होते हैं, डिमोशंस भी होते हैं, यूटिलाइजिंग भी होता है रिसोर्सेज का, कंट्रीब्यूशंस होते हैं पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में. सो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज, which title is given to an individual who is a charge of and coordinates the activities of a group of employees engaged in related activities within a unit of an organization. So कौन सा एक ऐसा टाइटल है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल चार्ज लेता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करता है जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर यूनिट में. So the first option is manager, second one is employee, third one is vendor and the fourth one is contractor. So the answer is manager, right. Manager ही एक particular unit को एक्टिविटीज़ की उनकी जो भी होता है वो चार्ज लेते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ ठीक से हो जाए पूरे ग्रुप में, पूरी टीम वर्क रहे ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल डेवलप हो और प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन को, राइट. Third question is, which management function involves setting goals and objectives and creating specific plan for completing them? So कौन सा एक ऐसा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है जहाँ पर गोल्स को अचीव किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट किया जाता है, राइट, प्लान्स को क्रिएट किया जाता है सो दैट वो कंप्लीट हो जाए. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज कंट्रोलिंग एंड द फोर्थ वन इज लीडिंग. सो द आंसर इज प्लानिंग. प्लानिंग में ही हम क्या करते हैं, सेट करते हैं गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हमारा क्या गोल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, बेसिकली वो हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्पेसिफिक प्लान्स क्या हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं विद इन 3 months या फिर 6 months या फिर 1 year के विद इन में, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन, which level of management is responsible for establishing a vision for an organization, developing broad plans, strategies and directing subordinate managers? So वो कौन से level of management हैं जो कि responsible होते हैं, vision क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, boards plans क्या हैं, strategies क्या हैं और वो डायरेक्ट भी करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, राइट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, second one is middle managers, third one is executive manager and the fourth one is second level managers. So the answer is executive manager. executive manager ही responsible होते हैं कि vision क्या है, establishing vision, that means कि यहाँ पर जो vision है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियर हो रहा है, प्लान्स वर्क कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स ही इन चीज़ों को देखते हैं. Fifth question is, which management principle states that each individual should report to only one boss in order to avoid conflict or confusion? So basically कौन सा वो management principle है जिसमें कि हर एक individual को एक ही boss को report करना होता है so that conflict ना हो और कोई confusion ना हो. So the first option is division of command,
second one is chain of command, third one is unity of direction, and the fourth one is unity of command. So the answer is unity of command. That means कि यहाँ पर बॉस ही होते हैं और बॉस को ही रिपोर्ट करना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल को, so that यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और ईजीली वो बॉस को कन्वे कर पाएँ अपने रिपोर्ट्स को, राइट. So sixth question is, which management principle states that order and instructions should follow down from top to bottom or from a high level managers to a lower one? So कौन सा एक management principle है जिसमें कि orders और जो भी instructions होते हैं वो top से bottom की तरफ के flow में चलता है, राइट. और हायर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो ही डील करते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को, मतलब लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स या फिर सबऑर्डिनेट्स को. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड वन इज चेन ऑफ कमांड, थर्ड वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड द फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड. सो द आंसर इज चेन ऑफ कमांड. एक पर्टिकुलर चेन होता है जहाँ पे जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट अपने जो भी बॉटम मैनेजमेंट होते हैं उनको सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और उसी की तरह से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं वो फिर अपने टॉप मैनेजमेंट ही बताते हैं उनको, सबऑर्डिनेट्स को अपने, राइट. और फिर उसी के हिसाब से वो जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो वर्क करते हैं, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. Seventh question is economic uncertainty, regularity requirements and the new competitors are the example of what type of factors that affect managers. So ये कौन से factors हैं जो कि economic uncertainties होती हैं या फिर regularity requirements या फिर कुछ new competitors आ रहे हैं, तो ये कौन से examples हैं, कौन से type of managers हो गए ये, ठीक है. सो इंट्रापर्सनल फैक्टर्स हो गए ये, या तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंट्रापर्सनल, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरनल फैक्टर्स, interpersonal factors, and the fourth one is external factors. So the answer is external factors. जो भी regularity requirements होती हैं, economic uncertainties हो रही हैं, नए नए competitors आ रहे हैं, है ना, तो ये सब क्या हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो कि अफेक्ट करते हैं मैनेजर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को. So eighth question is, which management function involves measuring results, comparing results to the expectations and taking corrective actions? So the first option is planning, second one is organizing, third one is leading and the fourth one is controlling. The answer is controlling. जो एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग जहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो मेजर होते हैं एंड कंपेयर किए जाते हैं. जो भी रिजल्ट्स हैं उसको एक्सपेक्टेशंस के साथ जो हमने ऑलरेडी लिए होते हैं, एक्सपेक्टेशंस कि हमें इतना गोल अचीव करना है विद इन 6 months, तो उसके बाद उनको कंपेयर किया जाता है और फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं अगर गोल्स फुलफिल नहीं होते हैं तो, राइट. सो वो मैनेजमेंट फंक्शन कौन सा है, कंट्रोलिंग है. 9th क्वेश्चन इज, विच इन्फ्लुएंशियल थॉट लीडर इज नोन एज फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो कौन से लीडर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं. सो यू हैव 4 ऑप्शंस. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डेल कार्नेजी, सेकेंड वन इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, third one is Edwards Denham and the fourth one is Peter F. Drucker, right. So the answer is Frederick Taylor. So I hope this is clear to you. 10th question and the last question is, which of the following is not the principle of management given by the Taylor. So कौन सा principle of management नहीं है इनमें से जो कि टेलर ने नहीं दिया है. So the first option is science not rule of thumb, second one is functional foremanship, third one is maximum not restricted output and the fourth one is harmony not discord. So the answer is B, that is functional foremanship. सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं जो टेलर ने प्रोफाउंड किए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फर्स्ट है, सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, पता है हमें, राइट. और थर्ड वन इज़ है मेंटल रिवॉल्यूशन,
फोर्थ वन इज़ कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो आप देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, सो दैट आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हम टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है वो क्या है, टेक्निक्स हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की हैं, जो कि प्रोफाउंड किया है टेलर ने ही। सो द फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में ये होता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में बेस्ट होते हैं। दैट मीन्स अगर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पर्सन है तो वो अकाउंट्स में ही बेस्ट होगा, राइट। कोई एचआर का एक पर्सन है तो वो एचआर में ही बेस्ट होंगे। तो वही इसमें बोला है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने एक स्ट्रीम में बेस्ट होता है तो उसको उसी में वर्क करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। यहाँ पर पर्टिकुलरली सिंप्लीफाई किया जाता है वर्क को, राइट। सेकेंड वन इज़ वर्क स्टडी, हमें किस तरह से वर्क को स्टडी करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फोर्थ वन इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में यही है कि हम वेजेस को वेज जो होते हैं हमारे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा वर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्कर्स होते हैं अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव करेंगे डेली, है ना, तो उनको वेजेस जो होती हैं उनकी ज़्यादा मिलती हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग उनको पे दिया जाता है, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।